السلام علیکم حبیبی یا رسول اللہ. جی چاہتا ہو تو کوئی شعر پڑھ دوں اور دل کی گہرائیوں سے سنو تب. کعبے میں ہو مزدوری سبحان اللہ انعام مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جس شہر کو میرے آقا نے پسند کیا. شاعر کہتا ہے کعبے میں ہو مزدوری سبحان اللہ مدینے میں. سبحان اللہ اور مکے میں سویرا ہو سبحان اللہ مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں. سبحان اللہ. اور کہ کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھنا. سبحان اللہ. ارے کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھنا. کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ جو شب ہے اس شب کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ پورے سال کے نامہ اعمال انسان کے اس رات میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس رات سے لے کر کے آئندہ سال شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہوگی اس رات تک جتنے بھی اعمال کیے ہیں خواہ وہ اعمال حسنہ ہوں یا وہ اعمال سیئہ ہوں یعنی خواہ برے اعمال ہوں یا اچھے اعمال ہوں سارے کے سارے رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس کے اعمال اچھے ہیں اس کے تو وارے نیارے ہیں لیکن جس نے پورا سال بد فعلی میں گزارا فحش کلامی میں گزارا برائیوں میں گزارا جھوٹ بولتے بولتے گزار دیا غیبت کرتے کرتے گزار دیا جب اس کا نامہ اعمال رب کی دربار میں پیش ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان میرے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان میرے پیارے کی امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. لیکن شعبان کا پورا مہینہ میرے آقا روزے سے رہا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں روزے سے رہتے تھے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے یہ کیا معاملہ ہے پورا شعبان کا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ جب میرا نام اعمال رب کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں بنا روزے کے ہوں. میرا نام اعمال رب کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے نہ ہوں ایسا مجھے گوارا نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے مجھے تو یہ گوارا ہے مجھے تو یہ بات منظور ہے کہ جب جناب والا میرا نام اعمال میرے رب کے حضور پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں.
سبحان اللہ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہم سرکار کی امت میں ہیں اور ہماری بھی تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جب ہمارا نام اعمال رب کی دربار میں پیش ہو ہم بھی روزے سے، ہم بھی نمازی ہوں، ہم بھی پرہیزگار ہوں، ہم بھی تقوی اختیار کر لیں، تاکہ جناب والا جب وہ نامہ اعمال بعد مرنے کے ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ سبحان اللہ جب آدمی مر جائے گا، جب اس کو موت آئے گی، اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور رب کے حضور حکم ہوگا کہ یہ پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کے حضور کیا حکم ہوگا کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ کتاب پڑھ کے سنا۔ وہ فرشتے انسان کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، ایک تمہارے دائیں کاندھے پر موجود ہے، ایک تمہارے بائیں کاندھے پر موجود ہے۔ جناب والا نیکی کرو گے تو دائیں کاندھے والا لکھ لے گا، اور برائی کرو گے تو بائیں کاندھے والے کو حکم ہوگا ابھی رک جا، سبحان اللہ ابھی رک جا۔ لیکن ادھر جب نیکی کا ارادہ کرو گے، آپ بندے نے ارادہ کر لیا میں وضو کروں اور اس کے بعد مسجد میں چلا جاؤں، پھر جا کے نماز پڑھوں، تو فرشتے کو حکم ہو جائے گا کہ اے فرشتے فٹافٹ لکھ لیں میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ حضرات گرامی وہ یہ فرما رہا ہے میرا بندہ ارادہ کر رہا ہے تو لکھ۔ سبحان اللہ لیکن ادھر بندہ گناہ کر چکا ہے اور فرشتے کو حکم ہے ابھی رک جا۔ کیوں؟ کہ شاید یہ توبہ کر لے اور پھر جب یہ توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ توبہ کرے گا تو میں گناہ کو معاف کر دوں گا۔ میرا رب کتنا قریب ہے۔ حضرات گرامی انتظار کروا رہا ہے فرشتے کو، کیا ہے فرشتہ ابھی انتظار کر لے، گناہ تو کر چکا ہے لیکن شاید یہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وقت بیتتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ بعالم مجبوری اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ مرے گا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو رب فرمائے گا اب تو پڑھ حضرت آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک کے جتنے یہ لوگ ہوئے یہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوں گے، سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور ان سارے لوگوں کے سامنے یہ حکم ہوگا کہ یہ پڑھ، جو کر کے آیا ہے وہ پڑھ کے سنا دے۔ کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے، ہم ان چند لوگوں میں اس کو کھڑا کر دیں، کھڑا ہو جا اور جو کیا ہے وہ اپنی زبان سے بیان کر دے، کرے گا کوئی؟ وہ گناہ بیان کرنے کو کوئی تیار ہوگا ان چند لوگوں میں؟ نہیں ہوگا کوئی بولو نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا اور کہاں حضرت آدم تھے؟ 1,24,000 2,24,000 کا مبیش انبیاء آئے جو گنے چنے لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی تعداد، اور وہ بھی کم و بیش کسی نے مقرر نہیں بتائی، ان کا عوام کا شمار ہے۔ اور پھر قیامت کب آئے گی؟ تب تک ابھی لوگ پیدا ہوں گے، آئیں گے، دنیا میں رہیں گے، پھر دنیا چھوڑیں گے، یہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ رب فرمائے گا کہ اپنے یہ کرتوت پڑھ کے سنا دیں۔ اس وقت کو یاد کرو، اس سے خوف کھاؤ، اور مرنے سے پہلے ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں توبہ کروں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ رب کہتا ہے بندے ایسی توبہ میری دربار میں کر کہ پھر تو دوبارہ گناہ کرنے کا گمان بھی نہ کرے، تو وہ توبہ میں تیری قبول کروں گا، حتیٰ کہ تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، سمندر میں اندر جتنا پانی ہے اس پانی کے قطرے کے برابر ہو، حضرات گرامی درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اور سارے کے سارے گناہ تب معاف کر دوں گا جب تو میرے خوف سے لرزے گا، اور لرز کر کے میرے خوف سے تیری آنکھ سے آنسو باہر نکل جائے گا۔ سبحان اللہ
अल्लाह फरमाता सब गुनाह माफ कर दूंगा। तो ये रात जो है, इस रात में साल भर के किए अमाल रब के दरबार पेश किए जाते हैं। और इससे और बात बता दूं कि फरिश्तों की ड्यूटी है सुबह फजर में उतरते हैं और अल्लाह की इन बंदों को देखते हैं, इनका मुहासबा करते हैं, बंदे क्या कर रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग उठ करके अल्लाह को याद कर रहे हैं, कितने लोग ताज्जुद के वक्त जागे थे और ठंडे पानी से वजू करके लड़खड़ाते हुए मुसल्ले पे खड़े हैं और रब को याद कर रहे हैं। और फिर कितनों ने जनाबे वाला अजान अपने कानों से सुनी और उस अजान को सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। और फिर कितने लोगों ने तकबीरें ऊला के साथ नमाज की इब्तिदा की। सुभान अल्लाह। तकबीरें ऊला के साथ जमात में शरीक हुआ। ये सारे के सारे वो फरिश्ते लिख रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर दिन चढ़ गया, नमाज इशराक किसने पढ़ी और वक्त आगे गुजरा, जोहर की अजान मुअज्जिन ने पढ़ी, किन किन लोगों ने नमाज जोहर अदा की और वक्त आगे बढ़ा। तो उनमें से कितने बाकी रह गए जिन्होंने नमाज असर अदा की। हाफिज़ून अला सलावात व सलातिल वुस्ता, मेरा रब कहता है हिफाजत करो अपनी नमाजों की और खास कर बीच वाली नमाज की। उलमा लिखते हैं कि बीच वाली नमाज नमाज असर है। बीच वाली नमाज नमाज असर है, यानी दौर और दौर नमाज दिन में आ गई फजर और जोहर, और दो नमाजें रात में आ गई मगरिब और इशा, तो असर आ गई बीच वाली नमाज। वो कहा लिखते हैं बीच वाली नमाज की हिफाजत करो। क्यों? कि जो फरिश्ते फजर में आए थे वो असर में रब के हुजूर जा रहे थे। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और तुम्हारे अमाल लिख रहे थे, अब वो असर में जाकर के रब के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह पूछेगा बताओ कहाँ थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जमीन पर गए थे। हालांकि फरिश्ते किसके भेजे हुए आए थे? रब के भेजे हुए आए थे। पूछ रहा है, रब पूछ रहा है वे कहाँ थे? बोले जमीन पर चले गए थे। बोले क्या काम किया? बोले अल्लाह तेरे बंदों का मुहासबा करने गए थे। क्या कर रहे हैं तेरे बंदे? कितना तुझे याद कर रहे हैं। तो हमने देखा भला बंदा ताजुद की नमाज के लिए उठा था, उसके बाद जनाबे वाला उसने ठंडे पानी से वजू किया, नमाज ताजुद पढ़ी, फिर मौज़िन ने अज़ान पढ़ी, उसी सर्दी के आलम में मस्जिद चला गया, वहां जाकर के तकबीर उला के साथ नमाज फजर के फर्ज अदा किए और फिर अपने घर की तरफ वापस चला आया या मस्जिद में ही बैठा रहा। बहुत बड़ा सवाब है कि इंसान नमाज पढ़े और फिर मस्जिद में बैठा रहे। जब तक वो बैठा रहेगा वो कुछ ना पढ़े, खामोशी के साथ बैठा रहे, तब भी रब फरमाता फरिश्तों मेरा बंदा बेशक बैठा है लेकिन मेरा फरीजा अदा करके बैठा है, तुम इसके नाम अमाल में नेकियां लिखते रहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा बताओ फरिश्तों मेरा बंदा क्या कर रहा था? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला नमाज फजर अदा करने के बाद तेरे मुकद्दस कलाम की तिलावत कर रहा था, वहीं बैठा रहा, तेरे कुरान को पढ़ता रहा। सूरज निकल आया, 20 मिनट गुजर गए, मगरिब टाइम खत्म हो गया, नमाज इशराक भी पढ़ी। फिर घर की तरफ गया, फिर अपने कारोबार में लग गया, रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकला, भी बच्चों के लिए रिज़्क़ तलाश किया। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई माल मवेशी का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है। रब फरमाता है मेरे फरिश्तों सुनो, ये मेरा बंदा मेरी इबादत करने के बाद अपने जनाबे वाला रोजगार के लिए निकला हुआ है। कोई खेती कर रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई बकरियां चरा रहा है, कोई दिन में ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन तुम लगातार इसके नाम अमाल में नेकियां लिखते रहो। सुभान अल्लाह। आप जोहर का वक्त आ गया,
बंदा जोर की नमाज पढ़ता है, जोर से लेकर के असर तक फरिश्ता नेकियां लिखता है। बंदा नमाज असर पढ़ता है, रब का हुक्म है, फरिश्ता असर से लेकर के मगरिब तक नेकियां लिखता है। बंदा मगरिब पढ़ता है, रब का हुक्म है, फरिश्ते लिख। फरिश्ता मगरिब से लेकर के इशा तक नेकियां लिखता है। अब बंदा नमाज इशा पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद अपने बिस्तर की तरफ बढ़ता है और जनाबे वाला बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और लेटने के बाद सो जाता है। फरिश्ता रब की दरबार में अर्ज करता है, मौला तुम दिन भर ये तेरी इबादत करता रहा, उसके बाद अपने काम काज में मसरूफ रहा, मैं लगातार नेकियां लिखता रहा, अब नमाज इशा पढ़ करके तेरा बंदा सो गया है, अब मुझे भी आराम का टाइम मिलना चाहिए। रब फरमाएगा, फरिश्ते बिल्कुल नहीं, इसके सराहने खड़ा रहे और पूरी रात ये सोता रहेगा, तू नेकियां लिखता जा। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और मेरा फरिश्ता नेकियां लिखेगा। ये शान है बंदे, ये शान है उस इंसान की जो बंदा अपने रब को याद करता है, और जो बंदा रब की याद से गाफिल हो जाता है, रब फिर भी कितना मेहरबान है। रब की जात से गाफिल है, वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोजे नहीं रख रहा है, मालदार है, ज़कात नहीं दे रहा है, और साहिब इस्तिताअत है, हज नहीं कर रहा है, पैसे जमा करके रखे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहा है, कोई सदका तो खैरात, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसे वालों को नहीं दिया, कहीं पैसा खर्च नहीं किया, बस जमा किया। अब इधर ये बंदा है जो इबादत करता रहा, जब इसकी मौत होगी अल्लाह फरमाएगा इसकी रूह को ऐसे खींच ले जैसे मक्खन से बाल को खींच करके खाते। और एक वो बंदा है जो सारी जिंदगी गफलत में रहा और माल जमा करने के चक्कर में रहा, जब उसकी रूह कब्ज होगी तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसे पकड़ के खींच ले जैसे बारीक कपड़े को कांटेदार झाड़ी के ऊपर फिरा दिया जाता, फिर उसको जोर से खींचा जाता, वो तारों में पड़ जाता। पतला कपड़ा तार हो जाता है, तारों में पड़ जाता है, इस तरीके का उसका जिस्म हो जाता है। इसीलिए मरने वाला ये कहता है कि ऐ बंदे जो मुझे गुस्ल देगा, अगर मुझे ये पता होता कि तू मुझे गुस्ल देगा तो सारी जिंदगी में तेरी गुलामी करता, सारी जिंदगी में तेरा नौकर रहता, सारी जिंदगी तेरे हाजिर तेरे हुजूर दस्त बस्ता खड़ा रहता। आज तू मुझे तकलीफ ना देना, आज मुझे तकलीफ ना देना। आदमी को चोट लग जाए, डॉक्टर के पास पट्टी कराने चला जाए, और अभी डॉक्टर इरादा ही करता है कि इसके जख्म वाला हिस्सा पकड़ूं और पट्टी करूं, तो बंदे की जान लहू पे आ जाती है। बोलो आती है नहीं आती? बंदे की जान लहू पे आ जाती है, पता नहीं कितने जोर से छुएगा और मुझे मेरा दर्द जो है दुख जाएगा। है ये बात है नहीं? तो जो पाँव के नाखून से लेकर के सर के बाल तक पूरा जिस्म ही ऐसा हो, तो फिर ऊपर से रगड़ रगड़ के बंदा साबुन लगा रहा हो, तो उसके बाज़ाहिर तो वो चुप लेटा है, लेकिन उसकी चीखें सातों आसमान पार कर जाती हैं। अल्लाह ताला इनके ऊपर दराज करे। पहले लोग कहते थे कि जानवर जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां से भागते हैं, हमारी देसी जुबान में कहते हैं बलियारा लग जाता है। बलियारा क्या होता है पता कि जब फरिश्ता गुनाहगार बंदे के ऊपर हथौड़ा चलाता है, उसकी इतनी खौफजदा चीख निकलती है, इंसान के कान पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा करके रखी है, वो सुन नहीं पाता है, लेकिन जानवर उसकी चीख सुनकर खौफजदा होकर के भाग निकलता है। मुर्दे की चीख अगर इंसान सुन ले तो कब्रिस्तान में दफन करना बंद कर दे, कोई इंसान को कब्र में दफन न करे। इतनी खौफजदा उसकी चीख होती है, इतनी खौफजदा उसकी आवाज होती है। लेकिन हम मुसलमान बड़े धड़ल्ले से कहते हैं मुसलमान है, और इतना कुछ देखने के बावजूद, इतना कुछ सुनने के बावजूद रात सारी खतीब सुनाता रहेगा, सुबह फजर की नमाज होगी तो जैसे ही जलसे से उठे सारा कुछ भूल करके चले जाते हैं।
हज़रात ग्रामी ये खतीब हज़रात रब के दरबार में कह देंगे कि मौला हम तेरे बंदों को बताते थे, तेरे मुकद्दस कलाम में जो तूने हुक्म नाफिज किया वो सुनाते थे, जो तेरे प्यारे हबीब की हदीस करीमा थी वो हम पढ़ के सुनाते थे, लेकिन मौला हम बरी हैं, ये बंदे तेरा पैगाम, तेरे हबीब का पैगाम हमने इन लोगों तक पहुंचा दिया है। अमल करना ना करना तुम्हारा काम है, पहुंचाना ये हमारा काम है। अल्लाह ताला हमारे पहुंचाने को कबूल फरमाए और तुम्हारे तक पहुंचने को कबूल फरमाए, और इसके ऊपर तुम अमल करो तो मैं दुआ कर दूंगा। अमल बड़ी चीज है, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत है ना, नारी है ना, अपनी फितरत क्या खाक, रूह निकल गया कहाँ रखेंगे, मिट्टी के अंदर। चंद दिन के बाद खोद करके देखोगे इंसान का जिस्म मिट्टी में मिल चुका होगा। क्यों? अल्लाह इकबाल ने कहा ना, खाकी अपनी फितरत है ना, नारी है, यानी ना इसको आग से बनाया है ना ही नूर से बनाया है, ये मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में चला जाएगा। ये रब की हिकमत है। मसले की बात है, ये तो शेर की बात है ना, मसले की बात है, रब की हिकमत है। तो जब बंदे को कब्र में रखा जाएगा तो उसकी रूह उसमें डाली जाएगी। फिका की किताबों में लिखा है अगर शेर भी बंदे को खा जाएगा तो शेर के पेट के अंदर भी इस बंदे को उसी तरीके का वो टुकड़ा अल्लाह तैयार करेगा और उसके अंदर डालेगा और उसके हिसाब किताब लिया जाएगा। वहां भी फरिश्ते जाएंगे और पूछेंगे मन रखो का तेरा रखो। ये तो लोग भूले हुए जो जला देते हैं, हमने जला दिया, मुर्दे को खत्म कर दिया, खाक उठा करके गंगा में बहा दी, खत्म हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने रीढ़ की हड्डी जो रखी है ना ये आग में जल सकती है, ना इसको मिट्टी खा सकती है, ना ये कहीं जाया हो सकती है, ये बाकी बरकरार रहेगी और बंदा इससे पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला जब कब्र के ऊपर मिट्टी डालते हो क्या करते हो, मिनहा खलकनाकुम, हम इसी से पैदा हुए, इसी में हम जा रहे हैं। आगे क्या, इसे दोबारा फिर उठाए जाएंगे, इसी से दोबारा फिर उठाए जाएंगे। तो कैसे उठाए जाएंगे, जो मैं आपका रहा था कि रीढ़ की हड्डी बाकी रहेगी, कब्र की मिट्टी उसको खा नहीं सकती, कोई दुनिया का कीड़ा उसको नहीं खा सकता है, दुनिया की आग उसको जला नहीं सकती है, वो जाया नहीं हो सकती है। और अल्लाह ताला उसी से इंसान को पैदा करेगा और उसके अंदर रूह डालेगा। हज़रात इकरामी और इंसान जिस हाल में इसी हाल में उठ खड़ा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस हाल में है ना, इसी हाल में उठ खड़ा होगा। और खुशखबरी सुनो मेरे वो भाई, वो बुजुर्ग जो मेरे रब को याद करते हैं, कब्रों में उनको सवारियां पेश की जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब्र के अंदर उनको सवारियां पेश की जाएंगी और वो अल्लाह के मुर्तज़ा बंदे सवारियों पर सवार हो करके अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। क्या बात है, अल्लाह ताला सबको देख के और बड़ी शान और शौकत के साथ फिर मैदान बैठे की तरफ चल पड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों में अर्ज कर रहा था कि बंदा जब उसको गुस्ल दिया जाता है तो वो कहता है काश मुझे पता होता कि तू मुझे गुस्ल देगा, मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करता। और गुस्ल देने वाले को वो पहचानता है। हाँ तो लोग बड़े बड़े लंबे दावे करते हैं कि बस मर गया तो गया, बस गुस्ल देने वाले को पहचानता, आम बंदा पहचान रहा है। कफन पहनाने वाले को मन मुर्दा पहचानता है, मुझे कफन कौन पहना रहा है। चारपाई उठाने वाले को मुर्दा पहचानता है, मेरी चारपाई को किसने कांधा दिया है। कब्र में उतारने वाले को मुर्दा पहचानता है, मुझे कब्र में किसने उतारा है। हज़रात इकराम तख्ते रख दिए जाते हैं, मिट्टी डाल दी जाती है और उसके बाद अब देखता तो नहीं है लेकिन सुन रहा है ये बच्चे जा रहे हैं वापस, उनके कदमों की आहट मुर्दा सुनता है, कदमों की आहट सुनता है। जब आहट आनी बंद हो जाती है तब फरिश्ते आ जाते हैं।
नकीरेन जिनको कहते हैं, हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते, जब आवाज कौम की खत्म हो जाती है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और एहसान है, उसने सुन्नियत के अंदर हमें पैदा किया। और हमारे एरिया में तो ये रिवाज यहाँ भी होगा और करना भी चाहिए। क्या? मेरे आका की हदीस है, जो जुमे के दिन जिसकी वफात हो गई, मुसलमान था, कोई कल कोई ये बात न कहे कि जुमे के दिन बहुत सारे काफिर में मर जाते, नहीं, कलमा गो था, मुसलमान था, जुमे के दिन मौत हो गई, तो बिना हिसाब और किताब से सुभान अल्लाह। दुनिया दो हो सकती है, सब में रद्द बदल हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बदल नहीं सकता। ये बात सच है, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान नहीं बदल सकता है कि जनाब वाला जुमे के दिन जो जिसकी वफात हो गई बिना हिसाब और किताब जन्नत में चला जाएगा, और रमजानुल मुबारक में जिसकी वफात हो गई बिना हिसाब और किताब अल्लाह जन्नत अता कर देगा। सुभान अल्लाह। उसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसीलिए जुमे को कहा सैयदुल अय्याम। क्या कहा? सैयदुल अय्याम, यानी पूरे हफ्ते की ईद है ये, हफ्ते में सबसे मोतबर दिन है ये, हफ्ते का सबसे बुरगुज़ीदा दिन है ये, सबसे बड़ा मर्तबे वाला दिन है ये। और इस दिन में जो मर जाएगा वो बिना हिसाब और किताब जन्नत में चला जाएगा। अब उसकी मसलियत क्या होगी? बाज़ाहिर इंसान ने कितने गुनाह किए होंगे, कितना कुछ किया होगा, लेकिन अल्लाह की मशीयत है कि मैं इसको बख्श दूं। अल्लाह की क्या मशीयत है? मैं इसको बख्श दूं। अब शायद के वक्त तौबा करो, वो कहता है तूबू इलल्लाह व तौबतन नसूहा, के मैं एक तरफ सच्ची तौबा करो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ का गुनाह सब बख्श दूं। शायद कि अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता करे और वो तौबा करे और फिर कलमा पढ़ ले, और फिर उसी के साथ साथ जुमे वाले दिन उसकी रूह परवाज कर जाए। बहाने बन जाते हैं ना। हज़रत बिशर हाफी का किस्सा सुना आपने? बहुत बड़े शराबी थे, शराब के कारखाने थे अपने, और खुद भी बहुत शराब पीते थे, अपनी भट्टी थी, अपना कारखाना था, शराब बनाते थे, नौकर चाकर लगे हुए थे, बेचते थे। एक दिन जा रहे थे तो शराब के नशे में धुत थे, लेकिन अचानक रास्ते पर नजर पड़ी तो एक कागज की कुर्सी पड़ी हुई थी। बोलो एक कागज की कुर्सी पड़ी हुई थी। उठा करके देखा तो लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात इकरामी उठा करके सीने से लगाया, चले गए लेकर के, और जाकर के पानी से उस धूल मिट्टी जो लगी हुई थी उसको धोया, फिर उसको सुखाया, फिर जनाबे वाला मुझको अंबर लगा करके ऊंचे मकाम पर रख दिया, और जुबान हाल से ये कहा कि तेरा मकाम ये है, जिस मकाम पे ये नाम पड़ा हुआ था वहाँ गिरना तो बिशर का काम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। बिशर हाफी इरशाद अर्ज करते हैं, मौला जहाँ पर तेरा नाम पड़ा था वहाँ पर गिरना पड़ना तो बिशर का काम है, तेरा तो वो मकाम है। रात आ गई, रात गुजरी, सुबह हुई, सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े आलिम को रब ताला ने रात को हुक्म दिया, चले जाओ बिशर के दरवाजे पर और जा करके कहना कि अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है। सुबह इधर मौजूद अजान पढ़ रहे थे, इधर दरवाजा किसी ने खटखटाया, आया साथ के अंदर से नौकर बाहर आया, बोले क्या बात है? बोले बिशर को बुला करके लाओ। बोले रात बहुत शराब पी ली थी, शराब के नशे में दूध पड़े हुए थे, जागे नहीं। बोले नहीं, जाओ जा करके बुला करके लाओ। नौकर चला जाता है, बिशर हाफी को हिलाता है, उठाता है और कहता है दरवाजे पर सबसे बड़े उलमा खड़े हैं शहर के और वो तुम्हें बुला रहे हैं। हजरत बिशर हाफी लड़खड़ाते कांपते हुए दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं आज न जाने क्या मसला हो गया है, शहर के सबसे बड़ा मौलवी मेरे दरवाजे पर कैसे आ गया है। जैसे हजरत बिशर हाफी सामने हुए तो मौलाना ने कहा सलाम अलैकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा रब ताला तुम्हें सलाम कह रहा है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? रब तुम्हें सलाम कह रहा है।
حضرت بشر حافظ کام پہ لرز گئے، جسم سے پسینہ چھوٹ گیا۔ بیان کر رہا تھا اللہ کی تو توبہ کی توفیق دیتا بھی بہانہ بن جاتا ہے۔ رحمت خدا بہانہ بھی جوید، بہانہ بھی جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت تلاش نہیں کرتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بے شک بے پھر شک بہانہ بن گیا بے شک بے شک۔ اور حضرت بشر حافظ کانپ اٹھے، جسم سے پسینے چھوٹ گئے کہ مولا ساری زندگی بدکاری کی ہے، ایک بار تیرے نام کو اٹھا کر کے اونچی جگہ پہ رکھا اور تو نے مجھے سلام کہا ہے۔ اے کاش ساری زندگی میں تو تیرا ذکر کرنا تو آج میرا مقام کیا ہوتا۔ اندر چلے گئے، سارے نوکروں چاکروں کو پیسے دے دیے، تنخواہیں حوالے کر دی اور شراب کی بھٹی کو آگ لگا دی، چپل اتار کر کے پھینک دی۔ بشر کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ حضرات گرامی رب تعالیٰ نے اس کا صلہ دنیا پہ یہ دیا تھا، جانوروں کو حکم دے دیا تھا، اے جانوروں میرے بشر نے چپلیں اتار دی ہیں، جوتے اتار دیے ہیں، جدھر سے وہ گزرے راستے میں پیشاب نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ راستے سے میرا بشر گزرے، راستے میں پیشاب نہ کرنا، گوبر مت کرنا۔ حضرات گرامی وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن کسی نے دیکھا کہ کسی جانور نے راستے میں گوبر کیا ہوا تھا، سر پیٹ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے آج دنیا سے بشر چلے گئے۔ کسی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، تو نے کس سے سنا ہے کہ حضرت بشر حافظ کی موت ہو گئی؟ بولا کہنے لگا کسی سے نہیں سنا، لیکن مجھے یہ پتہ چل چکا آج جانور نے راستے میں پیشاب کیا ہے، اس سے پتہ چلتا بشر گزر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جب توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر بندہ توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا یہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام رب تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جمعے کے دن جس کی وفات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جناب والا جنت عطا کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے، کسی بھی دن بندہ مر جائے، سوموار کو کسی کی موت ہوگی، اتوار کو ہوگی، ہفتے کو ہوگی، منگل کو ہوگی، بدھ کو ہوگی، اب اس کو دفنایا، میں نے عرض کیا نا کہ فرشتے قبروں کی آہٹ سنتے ہیں کہ بندے چلے جاتے ہیں تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب لوگ قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی قبر کے ارد، اوپر نہیں، اوپر کے بارے میں کہو گے تو بہت سارے فتوے آ جائیں، قبر کے اوپر تو بیٹھنا ویسے بھی نہ جائے، اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ ویسے بھی شرعی حکم ہے کہ اتنی دیر تک قبر کے اوپر ٹھہرو جتنی دیر تک اونٹ ذبح کیا جائے اور پھر اس کے گوشت کو جو ہے اس کا گوشت جو ہے کاٹا جائے اور کاٹ کر کے اس کو تقسیم کیا جائے، کم از کم اتنی دیر اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے قریب رہنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، دن میں قرآن پڑھتے ہیں، اب رات میں باری لگ جاتی ہے، 4 5 آدمی آتے ہیں تو بھائی بیٹھتے ہیں اوپر، وہ شامیانہ ترپال لگا لیتے ہیں اور ساری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے 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 جمعرات آ جاتی ہے، بیروار گزر جاتا، آ جاتی ہے جمعے کی شام، اور شام کو پھر رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے دیکھ میرا بندہ میرے بندے کے لیے کتنا مہربان ہے، تو میں تو خود غفور الرحیم ہوں۔ سبحان اللہ۔ بندہ بندے کے لیے بات یاد آ گئی تو عرض کرتا چلو، اپنے بارے میں کسی نے دعا قبول کروانی ہو، کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، نکتے کی بات ہے، تو ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، سب مومنین کے لیے دعا کریں، اور پھر سرکار کی خدمت میں عرض کرے، رب کی خدمت میں یہ عرض کرے کہ اے مولا تیرے حبیب کے والدین کا تجھے واسطہ ہے، میری دعا تیرے حبیب کے والدین کا واسطہ ہے، میری دعا قبول کر۔ بندے کی دعا قبول، پریکٹیکل کر کے دیکھنا، نہیں قبول ہوئی تو انشاءاللہ تمہیں کی ملی تو مل یہاں ہے تو مجھے پکڑ لے۔ دعا کی ہر انسان کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں میں ہے نا، یہ بات کہ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں، اور باپ جنت کا، اور میرے آقا کے والدین، میرے آقا کے والدین، بولو بولو میرے آقا کے والدین، بے شک۔ فتووں کی طرف مت جاؤ۔ ایک ساتھی نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کن، صحبت صالح ترا صالح کن، یہ رب کی مشیت ہے۔
नेकों की सोबत इख्तियार करोगे नेक हो जाओगे, बुरों की सोबत इख्तियार करोगे बुरे हो जाओगे। ये मेरे आप में मेरे रब की मशीयत थी कि हजरत अब्दुल्ला के घर में दो जहां के वाली को पैदा करना था, हजरत आमना की गोद में दो जहान के वाली को आना था। ये कुरान की तफसीर है, कुरान खोलो और कुरान को पढ़ो। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है उससे पहले इस खानदान में कोई नबी अल्लाह ने पैदा नहीं किया, तो जो जिस खानदानों में अंबिया पैदा होते रहे वो लोग ताक लगाए बैठे थे कि आखिरी नबी ने अभी आना है, आखिरी नबी आएगा तो हमारी इस कौम में आएगा, सुभान अल्लाह हमारी इस कौम में आएगा। लेकिन जब कुरैश में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पैदा किया तो ये सारे लोग बिगड़ गए। इनकार किस लिए किया था कि नबी इससे पहले तो सारे अंबिया हमारे हम में से पैदा हुए हैं, कुरैश में आखिरी नबी ये हो नहीं सकता, इसीलिए तो वो इनकार कर रहे थे। हम नहीं करना पड़ेंगे, तुम मौजूद दिखाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। है? लोग उधर ताक लगाए बैठे थे कि उस कबीले से अंबिया इकराम पैदा हुए और इस कबीले से कोई नबी पैदा नहीं हुआ। लेकिन आपकी मशीयत थी ये, अल्लाह जो चाहता है तो करके दिखाता है। मेरी बात को तो अल्लाह ताला के हबीब के साथ जिन लोगों ने मोहब्बत की, सुभान अल्लाह, उन लोगों को अल्लाह ताला ने कैसे बुलाते बता दिए हैं। आखिरी एक मिसाल पेश करके आपसे गुजर जाऊंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दुनिया के वो पहले फर्द हैं जिन्होंने जज की कुर्सी को ठोकर मारी, वक्त के जज थे वो। आज जाकर के किसी जज को कह दो तो अपनी कुर्सी छोड़ दे, छोड़ेगा। जब सरकार ने इधर हुक्म फरमाया पढ़ो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सबसे पहला शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने जज की कुर्सी को ठोकर मारी और कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। और तुम्हें सबसे पहले हज़रत खदीजा उल कुबरा उम्मुल मोमिनीन थी जिन्होंने कलमा पढ़ा। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली कररमल्लाहु तआला वजहल करीम ने कलमा पढ़ा। और फिर एक वक्त ऐसा आया, सरकार ने इरशाद फरमाया है लोगों इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है। तब भी थी, आज भी है। आज भी आप लोगों ने ये माल दिया है, आपका यहाँ मकतब चल रहा है, आपकी ये मस्जिद पिछले साल नहीं थी, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये ढांचा मौजूद है, अल्लाह के घर का ये छत ये शामियाना मौजूद है। ये जगह सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। वह ऐसा दौर क्यों ना आ जाए जिससे शहीद हो जाए, कोई और कौम आकर के आबाद हो जाए, लेकिन ये मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। भले इसके ऊपर कोई कुछ अपना घर बना दे, कोई खेती करना शुरू कर दे, कोई कुछ करे, जो मस्जिद बन गई जहाँ सजदा मुसलमान ने कर लिया वो मस्जिद है, तो वो क़यामत तक मस्जिद है। तो मैं अर्ज़ कर रहा, सरकार ने इरशाद फरमाया लोगों तुम्हारे माल की इस्लाम को जरूरत पड़ गई है, लाओ। हज़रत फारूक आज़म ने आधा माल अपने घर के लिए बच्चों के लिए रखा और आधा माल लेकर के चले और दिल में सोचा आज मैं सबसे बढ़ जाऊंगा, आधा माल इस्लाम को पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सारा माल जो था वो सारा लेकर के सरकार की खिदमत में ला करके रखा और जिस्म के ऊपर एक हरे रंग का कंबल पहने हुए थे और बटनों की जगह बबूल के कांटे लगाए हुए थे, बटनों की जगह बबूल के कांटे लगाए हुए थे। और जब सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर ये क्या कर रखा है? बोले या रसूल अल्लाह यही मुझे नसीब हुआ, यही पहन लिया है। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर जमीन के ऊपर तुमने कंबल पहना है हरे रंग का, आसमान के ऊपर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है ऐ फरिश्तों सारे के सारे फरिश्ते यही लिबास पहन लो। रब ताला को ये लिबास बहुत पसंद आया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को ये लिबास बहुत पसंद आया है। लेकिन ये अबू बकर हज़रत फारूक आज़म तुम ये बताओ कि कितना माल इस्लाम की खिदमत में पेश कर रहे हो? बोले या रसूल अल्लाह आधा माल इस्लाम को
को दिया है और आधा माल अपने बच्चों के लिए रखा है। सुभान अल्लाह। अबू बकर को पूछा, तुम बताओ कितना माल लाए हो? बोले या रसूल अल्लाह, जितना था मेरे पास वो सारा ला करके रख दिया है। था मेरे पास वो सारा ला करके यहाँ रख दिया है। बोले घर क्या छोड़ा है? बोले घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया। सुभान अल्लाह। घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आ गया हूँ। हजरत ग्रामी इतनी बड़ी मोहब्बत थी। और जनाबे वाला जब हजरत अबू बकर दुनिया से जाने लगे तो आखिरी बार जनाबे वाला मुख्तसर वाक़या बयान करता हूँ। जब दुनिया से जाने लगे तो उस वक्त आपने आखिरी वसीयत की कि ये जब मेरी रूह परवाज़ कर जाएगी तो मेरे जनाजे को जनाब क्या कहते हैं, गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद, चार पाई उठा करके रोज़ा रसूल के दरवाजे के सामने जा करके रख देना। सुभान अल्लाह। रोज़ा रसूल के सामने दरवाजे के सामने रखा और ये कहना कि अबू बकर इजाजत चाहते हैं। सुभान अल्लाह। इजाजत चाहते हैं। ये नहीं कहना कि हम अबू बकर के लिए इजाजत मांग रहे हैं कि बात कहीं बिगड़ न जाए। ये कहना अबू बकर इजाजत मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो आपके करवट में दफन कर दें। सुभान अल्लाह। आपको जो बर्बाद कर गई, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा पड़ा और हस्बे वसीयत उठा करके ले गए और सरकार के रोजे के सामने। सरकार का रोजा कहाँ पता? हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो कमरा, जो हुजरा था, उसी में अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक है। वो हुजरा ही सरकार का रोजा है। सुभान अल्लाह। वो हुजरा ही सरकार का रोजा है और उसी के दरवाजे के सामने जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी सरकार की बीवी है, उनसे इजाजत लेना, कहना कि अपने बाप के लिए जगह दे दो सरकार के पैरों में। नहीं, क्या पुख्ता ईमान है, क्या पुख्ता ईमान है। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे इस लाशे को जाकर के सरकार के रोजे के दरवाजे के सामने रख देना और कहना कि अबू बकर इजाजत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत मिल गई तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर नहीं मिली तो दरवाजा नहीं खुलेगा। इतना कहना था, खुद ब खुद दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आई कि मेरे महबूब को महबूब के पास ले आओ। सुभान अल्लाह। महबूब को महबूब के पास ले आओ। अब अंदर ले गए, कब्र खोदनी शुरू की और जब कब्र खोदी, तैयार हो गई कब्र, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को उसके अंदर जब रखने लगे तो सरकार के बराबर नहीं रखा। लोग क्या कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को तो रब के बराबर नौज़ुबिल्लाह कर देते हैं। कहाँ रब और कहाँ नबी, सरकार। यहाँ ये नुक्ते की बात है, सरकार के सर के बराबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का सर कब्र के अंदर नहीं रखा। उस दौर के मुसलमानों की बात है, जिन मुसलमानों ने अपने माथे की आंखों से मेरे आका को देखा, जिन लोगों ने मेरे आका के पीछे नमाजें पढ़ी थी, जिन लोगों ने जनाब वाला लैलो नहार उनकी खिदमत में गुजारे थे, सरकार के कंधे के बराबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का सर रखा। सुभान अल्लाह। सरकार के कंधे के बराबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का सर मुबारक रखा। यानी कब्र इतनी पीछे थी कि जहाँ सरकार का कंधा था वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक का सर रखा। अब गुजरता गया, हजरत फारूक आज़म की बारी आ गई। आपने वसीयत की कि जाओ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से इजाजत लेकर के कि मेरी ये ख्वाहिश है मैं सरकार के पैरों में दफन हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है मैं सरकार के पैरों में दफन हूँ, और जाओ उनसे इजाजत लेकर के आओ। गए, जाकर के कहा कि खलीफा दोम हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाजत तलब कर रहे हैं कि मुझे सरकार के पहलू में दफन किया जाए। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा फरमाने लगी कि वो जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी। अगर खलीफा दो ना कहते तो मैं इसकी जगह कोई और कहता तो मैं जगह कभी भी ना देती। खलीफा दो ना कहते तो ये जगह में कोई और इनकी जगह मांग लेता तो मैं कभी ना देती, क्योंकि मैंने अपने लिए रखी हुई थी।
لیکن اگر خلیفہ دو مانگ رہے ہیں تو میں ان کو پیش کر دیتی ہوں. اور ایک قبر کی جگہ ابھی وہاں اور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے حکومت کریں گے، اس کے بعد جب ہوش ہوں گے تو پھر وہاں ہی پر ان کو بلایا جائے گا. سبحان اللہ. اب حضرت فاروق اعظم کی وفات ہو جاتی ہے. جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو دفنایا جنازہ پڑا اور لے گئے. اب اجازت کس سے لی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ. اور حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت کس سے لی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. اب ان کی قبر جو کھودی تو ان کا سر حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھے کے برابر رکھا. سبحان اللہ. اس کا حالانکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کسی کو کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت فاروق اعظم ہوتا. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا سر حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھے کے برابر رکھا. ایک رات صاف موسم، تارے جھلملا رہے تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے موسم صاف ہوتا ہے، بڑے کھلے تارے ہوتے ہیں آسمان پر. رات کا موسم تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، اور میں آسمان کے ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ پتا چلا قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کے حبیب کو تاروں کا بھی علم ہے اور جس کی نیکیاں بتائیں گے ان نیکیوں کا بھی علم ہے. سبحان اللہ. تو بتا سکتا ہے تارے کتنے ہے کسی کی ہمت؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے میرے عمر کی نیکی ہے. سبحان اللہ. اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں. حضرت عائشہ نے کچھ اور سوچا تھا، جواب کچھ اور نکل پڑا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ متغیر ہو گیا، پریشان ہو گئی. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو یہ پوچھا تھا، میرا پوچھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ میرے باپ کی نیکیاں سرکار بتاتے ہیں کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. تو سرکار نے تو حضرت فاروق اعظم کا نام لے لیا. یہ کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ نے دیکھا کہ میری محبوب بیوی کا چہرہ متغیر ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ میں نے تو یہ سوچا تھا لیکن میرے باپ کی نیکیاں کیا ہوئی کدھر گئی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک پلڑے میں عمر کی ساری نیکیاں. کی بات ہے ایک پلڑے میں آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر جو عمر کی ساری نیکیاں ہیں. ایک پلڑے میں یہ ساری نیکیاں اور ایک پلڑے میں میرے صدیق کی ایک نیکی اور پھر بھی وہ بھاری نکل جائے گی. سبحان اللہ. وہ کون سی نیکی ہے ذرا ہے کسی کو پتا؟ غارِ ثور کی نیکی ہے. غارِ ثور کی نیکی ہے. اب بات اور پڑ گئی. غارِ ثور کے اندر جو سانپ نکلا وہ کس دور کا تھا کسی کو پتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس نے کہیں سنا تھا کہ اس غار کے اندر آخری نبی تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. آپ نے کیا سنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سنا کہ آخری نبی غار ثور کے اندر تشریف لائیں گے. تو سانپ آ کر کے اس غار کے سوراخ کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا. زندگی گزارنے لگا، انتظار کرنے لگا کب وہ گھڑی آئے گی کہ آنکھوں سے اس اللہ کے اس حبیب کا مقدس چہرہ دیکھوں گا، دیدار کروں گا. سبحان اللہ. کیا مزے کی بات ہے. سانپ انتظار کر رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے. وقت آ گیا، آ گئے سرکار غار کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ باہر رکے میں اندر جاتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں اور پھر اس کے اندر اگر کوئی سوراخ ہے اس سوراخ کو بند کر دیتا ہوں.
अंदर चले गए, सारे सुराख कपड़ा था तहमत का, उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े किए और सुराख बंद करने लगे। कार अंदर से साफ कर दी, एक सुराख बाकी रह गया। बताते हैं उसके ऊपर अपने पाँव की एड़ी लगाई और सरकार को अंदर बुलाया। सरकार अंदर तशरीफ लाए, सरकार लेट के गार के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दानों के ऊपर सर रखा। सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर वाला वो दानों, क्या किस्मत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। दानों के ऊपर सर रखा, सरकार की आंख लग गई सोते। हज़रात ग्रामी थोड़ी देर गुजरती है, सांप आ जाता है। सांप ने सारे सुराख तलाश कर डाले, हर एक सुराख बंद था। एक सुराख पे उसने देखा कि किसी इंसान का जिस्म है, उसने जोर से डंक मारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पाँव नहीं हटाया, वो इतना जहरीला था, आंख से आंसू निकला और टपका सरकार के रुख ज़ेबा पे पड़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के रुख ज़ेबा पे